Good morning, students. Today is 27th February 2021 and we'll be taking parallel computing session. In this, we have divided the session in we have divided this parallel computing chapters, parallel computing concept. The entire book is being divided into these different chapters. Let's see. Introduction to parallel computing, then parallel programming platforms, principle of parallel algorithm design, basic communication operations, analytical modeling of parallel programs. That is, these are the fundamentals of parallel computing. Introduction to parallel computing, programming, parallel programming platforms, principle of parallel algorithm design, basic communication operations, and analytical modeling of parallel programs. These are the fundamentals which are being included. Then the sixth chapter will be programming using the message passing paradigm, MPP, message passing paradigm. That is sixth chapter. Seventh is programming shared address space platform. That is this parallel programming. Then we have sorting, graph algorithms, search algorithms for discrete optimization problems, dynamic programming, that is non-numerical algorithms. And at the end, in the eighth chapter, we are having this. After this, we are having eighth chapter. Seventh के बाद में eighth chapter ये है. That is dense matrix, that is numerical algorithms, fast Fourier transform. These are the 13 chapters in this book. So this is the distribution of the chapter. Now we'll begin with the introduction to parallel computing. Parallel programming platforms. Parallel programming platforms. We have already covered parallel programming concept. Now the second chapter is parallel programming platforms. Parallel programming platform means how we are going to do the programming using this parallel concept. So let's talk about the traditional one. In the traditional logical view of a sequential computer consists of a memory connected to the processor via the data path. This is, we are talking about the third generation or fourth generation computers where sequential memory management, sequential computer connection or sequential data path is being used for processing of the instructions. So all three components, processor, memory and the data path, present to the overall processing rate of a computer system. A number of the architectural innovations over the years have addressed this bottleneck. One of the most important innovations is the multiplicity. See, पहले क्या हुआ करता था, पहले जो है वो सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग होता था, एक खत्म होने के बाद सेकंड होगा, सेकंड खत्म होने के बाद थर्ड होगा. दिस टाइप ऑफ सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग हुआ करता था. तो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर सीक्वेंशियल के फॉर्म में हुआ करता था. Nowadays, as the trend changes, it has been converted in the form of a parallel programming where multiple tasks can be performed parallelly. So this type of concept has been introduced by the years. So the objective is to provide the sufficient details for the programmers to be able to write the efficient code to a variety of platforms. And we develop codes, models, and abstractions for quantifying the performance of various parallel algorithms. So for this, for introduction of these things, parallel programming platforms are being introduced. Basically, when we talk about platforms, it means we are talking about the operating system which supports parallelism. Okay, so this is the new feature which is being added in the new operating system. So let's see. There's a discussion over the serial and implicitly parallel architecture. Okay, so we know that this serial, when we talk about the serialism, it is completion of one task, then beginning of the next task, completion of the second task, then the third task. Whereas when we talk about the parallelism, it is implementing the parallel algorithm and performing the concurrent task. Okay, now let's see the implicit parallelism, that is trends in the microprocessor architecture. So what will be the architecture when we want to implicitly implement the parallelism? Now, while microprocessor technology has delivered significant improvement in the clock speeds over the past decade, it has also exposed a variety of other performance bottlenecks. To alleviate these bottlenecks, microprocessor designers have explored alternate routes to cost-effective
performance gains. In this section, we will outline some of these trends with a view of understanding their limitations and how they impact algorithms and code development. The objective here is not to provide a comprehensive description of processor architecture. There are several excellent text referenced in the bibliography that address this topic. See here, I'm saying that when we are talking about this implicit parallelism, that is the architecture which supports this type of implicit parallelism. This is basically to improve the clock speed of the instruction which is being executed in parallelism. So clock speed of the microprocessor have posted impressive gains 2 or 3 order of magnitude over the past 20 years. मतलब पिछले 20 सालों में हमारे पास में इम्प्रूवमेंट में क्या हुआ है? इम्प्रूवमेंट में ये हुआ है कि जो क्लॉक माइक्रो प्रोसेसर की जो क्लॉक स्पीड है वो इंक्रीज हो गई. कैसे इंक्रीज हो गई है? क्योंकि एक से ज्यादा जो इंस्ट्रक्शंस है वो एट अ टाइम एग्जीक्यूट हो रहे हैं. कैसे? मेमोरी के अंदर यूजिंग द डेटा पाथ. At the same time, higher level devices integrated have also been resulted a very large transistor count, raising the obvious issue of how best to utilize. मतलब जो भी हमारे पास में resources हैं उनका best utilization करना है. That is, there should not be any time wasting over on switching over. Switching over जो रहता है, ये turn around time होता है, वो time जो है वो minimize होना चाहिए. और उसको यूटिलाइज करते हुए ये जो कंसेप्ट है it has been developed. Okay, देखो यहाँ ट्रेंड इन इवेंट इन द करंट जनरेशन ऑफ माइक्रोप्रोसेसर सच एज Itanium, Spark Ultra, MIPS, multiple instructions per second, Power 4. These are some of the architectures which are being proposed in the technology. So let's begin with the concept of pipelining and superscalar execution. Pipelining and superscalar execution means what? Pipelining is the example of sequential algorithm where we have one diagram also. See here, this is the superscalar execution diagram, instructions which are being executed that we will be taking. So when we talk about pipelining is execution of one instruction, then switching over to the second instruction and then third instruction. Let's see this text, what is written. Processor have long relied on pipeline for improving execution rates by overlapping various stages in the instruction execution. एक इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होती है तो उसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? उसके अंदर फेच, शेड्यूल, डिकोड, ऑपरेंड फेच, एग्जीक्यूट, स्टोर. These are the instructions which are being executed. These are the micro instructions which are being executed when any instruction gets executed. एक इंस्ट्रक्शन होती है उसके अंदर कुछ माइक्रो इंस्ट्रक्शन होती है. कौन कौन सी माइक्रो इंस्ट्रक्शन होती है? फेच, शेड्यूल, डिकोड, ऑपकोड फेच एंड एग्जीक्यूट, स्टोर. ये माइक्रो इंस्ट्रक्शंस हैं. अब जब भी कोई एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है तो इनमें से कोई भी एक स्टेज पे वो इंस्ट्रक्शन हो सकती है. तो जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो इन सब स्टेजेस से क्रॉस होगी. वो इन सब स्टेजेस से क्रॉस होने के बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जब शुरू होगी तो वो इन सब इंस्ट्रक्शंस के थ्रू क्रॉस होगी. फिर थर्ड इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगी तो ये सब इंस्ट्रक्शंस के थ्रू क्रॉस होगी. तो एक इंस्ट्रक्शन मतलब ये 3, 4, 5, 6 माइक्रो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हुई. ओके, उसके बाद में फिर से 6 माइक्रो इंस्ट्रक्शंस, मे बी इससे कम या ज्यादा और भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेशन द इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्स. तो सीक्वेंशियल के केस में ये सारी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट, माइक्रो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होगी, फिर दूसरी होगी, फिर तीसरी होगी. ओके, बट वी हैव यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ पाइपलाइनिंग. पाइपलाइनिंग मतलब क्या हो गया कि एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रही है. अब वो कैसे हो रही है? देखो, assembly line analog works well for understanding pipelines. It is the assembly of a car. Taking 100 times units can be broken up into 10 pipeline stages of 10 units each. A single assembly line can produce a car every 10 time units. This represents a 10-fold speed up over producing cars entirely serially, one after the other. It is also evident from this example that to increase the speed of a single pipeline, one would break down the task into smaller and smaller units, thus lengthening the pipeline and increasing the overlap in execution. This is the example. मतलब हमारे पास में अगर एक कार का असेंबली का काम चल रहा है जिसको 100 टाइम्स यूनिट लगता है,
तो उसको क्या कर दिया हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उन 10 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद में हर एक को कितना टाइम लगने लग गया, 10 टाइम यूनिट्स में लग गया। अब वो 10 टाइम यूनिट्स क्या होता है कि पहले वाले जो टास्क है उसका 10 टाइम्स यूनिट एग्जीक्यूट हो रहा होगा, सेकेंड वाला टास्क जब शुरू होगा जब इसका 5 टाइम्स खत्म हुआ होगा, और ये 5 टाइम्स खत्म हुआ होगा और सेकेंड वाले का फर्स्ट शुरू हुआ होगा। तो इस तरह से ये एक से ज्यादा एग्जीक्यूशन होता है। लेट्स से एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स इन अ सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में अगर हम क्लॉथ्स वॉश करते हैं तो व्हाट इज द वे कि सबसे पहले हमने वॉश टब के अंदर 10 क्लॉथ्स वॉश करने के लिए डाल दिए। ओके, जब वो 10 क्लॉथ्स वॉश हो गए तो उनको वहां से निकाल दिया और उनको ड्राइंग के लिए दूसरे टब में डाल दिया। उसी टाइम पे जब इसको ड्राइंग के लिए टब में डाल दिया वो 10 क्लॉथ्स को, तो 10 नए जो क्लॉथ्स हैं उनको वॉश टब में हमने डाल दिया। ओके, अब जब हमने उनको वॉश टब में डाल दिया तो ये वाला जो पहले वाले थे 10 जो ड्रायर में थे वो चल रहे हैं साइमल्टेनियसली, और ये सेकंड वाला जो लॉट है 10 क्लॉथ्स का वॉश टब में वॉशिंग हो रहे हैं। अब ड्रायर वाले जब ड्राई हो गए तो अब हमने उनको सनलाइट के अंदर सुखाने के लिए डाल दिया। अब ये जो वॉश टब था इसको इसके जो क्लॉथ है उसको ड्रायर में डाला। ओके, और यहाँ पर 10 मोर क्लॉथ जो है वॉश टब में डाल दिए। तो पैरेलली हमारे पास में कितने चलने लगे, एक वॉश टब में चल रहा है, एक ड्रायर में चल रहा है, और एक हमारे पास में 10 क्लॉथ जो है वो सन के नीचे सूख रहे हैं। अब और आगे प्रोसेस शुरू कर दी, माइक्रो इंस्ट्रक्शन, एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन होगी प्रेस की। तो जो हमारे ड्राई हो गए हैं वो गए प्रेसिंग के लिए, जो ड्रायर के अंदर थे वो सनलाइट के अंदर चले गए, सनलाइट वाले प्रेस के लिए चले गए, और ड्रायर वाले सनलाइट के लिए चले गए, और जो वॉश टब वाले थे वो चले गए ड्रायर के अंदर। तो हमारे पास में कितनी माइक्रो इंस्ट्रक्शंस हो गई उस केस में, कितनी प्रोसेसिंग पार्ट हुई, एक हुई वॉशिंग ऑफ क्लॉथ इन द वॉश टब, ड्राइंग इन अ ड्रायर, देन सनलाइट के अंदर उसको ड्राई करना, एंड फोर्थ स्टेप इज प्रेस। तो ये 4 माइक्रो इंस्ट्रक्शन हो गई। तो जब कुछ माइक्रो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है कुछ क्लॉथ्स के साथ में वॉश टब में, तो कुछ जो है वो ड्रायर में है, कुछ जो है वो 10 क्लॉथ्स जो है वो सनलाइट में, और 10 क्लॉथ्स कहाँ पर पहुंच गए, 10 क्लॉथ्स पहुंच गए हमारे प्रेसिंग के लिए, प्रेस के लिए। तो हमारे पास में ये चारों साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूशन हो रहा है, बट वो अलग अलग स्टेजेस में। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज पाइपलाइन। इसको क्या बोलते हैं, पाइपलाइन। देखो पाइपलाइन का एक बहुत बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर बनाया हुआ है, एग्जांपल ऑफ टू वे सुपर स्केलर। ये सुपर स्केलर का एग्जांपल है, पाइपलाइन का एग्जांपल आई विल शो यू। Okay, now let's see what is pipelining. That is, multiple instructions are overlapped in execution. At the time of execution, more than one instructions are overlapped. That is the concept of pipelining. It exploits parallelism among the instruction in a sequential instruction stream. मतलब एक sequential instruction stream में ये parallelism का introduction है. Okay. This is pipelining is used in advanced microprocessor executing a second instruction before the first has been completed. मतलब पहली instruction complete होने के पहले ही second instruction execute होती है. That is the concept of pipelining. So it is divided into segments and each segment executes operation concurrently with other segments. मतलब ये क्या कर रहा है, एक बड़ा जो हमारे पास में इंस्ट्रक्शंस है उसको डिफरेंट छोटी छोटी माइक्रो इंस्ट्रक्शंस में डिवाइड करेंगे, और जब पहली वाली इंस्ट्रक्शन की फर्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही होगी तो सेकंड वाली इंस्ट्रक्शन जो है उसकी कुछ और माइक्रो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी. दिस वे इट इज इंट्रोड्यूसिंग द कंसेप्ट ऑफ पाइपलाइनिंग. So after compilation, it passes the result to the next segment in the pipeline. Okay. Now Intel Pentium chip uses the pipelining to execute 6 instructions simultaneously, also called as pipeline processing. This is one of the example of pipelining where Intel Pentium processor Pentium 5 uses this. Advantage is it improves the CPU performance by increasing the instruction throughput and decreasing the execution time of an instruction. So let's see what are the steps which are being involved in the execution of any instruction under pipelining. So CPU involves the following micro instructions for the execution. First of all, what it does, it fetch the instruction and increment the program counter by 1. इंस्ट्रक्शन मतलब कोई भी एक इंस्ट्रक्शन है, सपोज हमारे पास में एक इंस्ट्रक्शन है C is equal to A plus B is one of the instruction which is to be executed. Okay, A plus B. So first step is to
फेच द इंस्ट्रक्शन एंड इंक्रीमेंट बाय पीसी। पहले क्या करना है, इंस्ट्रक्शन को फेच करना है एंड देन इंक्रीमेंट द प्रोग्राम काउंटर बाय 1। फेचिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन मींस लोडिंग द वैल्यू इनटू द मेमोरी, गेटिंग द डेटा इनटू द मेमोरी, मेमोरी में डेटा को गेट कर रहा है। देन द सेकंड स्टेप इज टू डिकोड द इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन डिकोड मींस टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन, उसका उसमें का एड्रेस स्पेस में कौन सा डेटा अवेलेबल है उसको डिकोड करना। देन द नेक्स्ट ऑपरेशन इज टू एक्सेस द ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स मींस ऑन विच इट ऑपरेट्स। इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया मतलब यहाँ पर इस इंस्ट्रक्शन को समझा कि दो ऑपकोड है, एक दो ये ऑपकोड है ए बी और ये ऑपरेटर है, तो दो ऑपकोड को हमको ऐड करना है इस ऑपरेटर से प्लस ऑपरेटर से, दैट इज डिकोडिंग द इंस्ट्रक्शन टू अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन। एक्सेस ऑपरेंड्स मतलब ए और बी को एक्सेस कर लिया, यहाँ पर फेच कर लिया वैल्यू और अब इनको एक्सेस कर लिया। नेक्स्ट इज टू एग्जीक्यूट द ऑपरेशन। एग्जीक्यूट मींस परफॉर्म द एडिशन ऑफ ए एंड बी and then store the result in a variable that is C. So these are the 5 steps which are being included. In some other authors have given different authors have given different types of micro instructions, but वो है overall ही 4-5 instructions ही है, कुछ और नाम भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि यही नाम है, but basically ये 5-6 steps रहते हैं एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूशन करने के लिए। These steps are called as micro instructions, इनको बोलते हैं माइक्रो इंस्ट्रक्शन। तो कभी भी एक कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है तो दैट इंस्ट्रक्शन इज बीइंग डिवाइडेड इनटू दीस 5 माइक्रो इंस्ट्रक्शंस। ओके, नाउ इंस्ट्रक्शन एंटर्स द सीपीयू एट द फेच स्टेज। फेच स्टेज के अंदर इंस्ट्रक्शन एंटर करती है। देन प्रोग्राम इज पीसी, दैट इज प्रोग्राम काउंटर इज इंक्रीमेंटेड बाय 1 साइकिल एंड द नेक्स्ट क्लॉक साइकिल द इंस्ट्रक्शंस मूव टू द डिकोड स्टेज। मतलब अगर एक इंस्ट्रक्शन जो है वो फेच स्टेज पर है तो दूसरी इंस्ट्रक्शन डिकोड पे है और तीसरी इंस्ट्रक्शन जो है वो एक्सेस पे है, चौथी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट पे है और पांचवी इंस्ट्रक्शन स्टोर पर है। ओके, सो लाइकवाइज वी हैव दिस। सो थर्ड क्लॉक साइकिल द इंस्ट्रक्शन मूव टू एक्सेस स्टेज एंड ऑपरेंड्स आर लोडेड and the last 2 stages, that is instruction is executed and the result is stored, is the last stage. So in 5 stage pipeline single instruction takes 5 clock cycles as shown here. अब देखो ये है पाइपलाइनिंग एग्जीक्यूशन। हमारे पास पे एक ऐड इंस्ट्रक्शन थी C is equal to A plus B, जो किन स्टेज से जा रही है, फेच, डिकोड, एक्सेस, एग्जीक्यूट एंड स्टोर। तो पहले फेच हुआ, then it moves to the decode stage, then it moves to the access stage, and after the access stage it moves to the execute stage and then store. So how many clock cycles it requires? It requires 5 clock cycle to execute the instruction under pipeline. तो एक सिंगल इंस्ट्रक्शन ये 5 माइक्रो इंस्ट्रक्शंस में डिवाइड हो रही है और ये 5 साइकिल इस तरह से यूज कर रही है। अब पाइपलाइन एग्जीक्यूशन में अगर एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शन एंटर कर रही है, एक इंस्ट्रक्शन ऐड की होगी, दूसरी की होगी एसडब्ल्यू इंस्ट्रक्शन। तो जब पहली वाली इंस्ट्रक्शन जो है, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन फर्स्ट क्लॉक साइकिल में किस स्टेज पर है, पाइप स्टेज पर है, ये पहली क्लॉक साइकिल है। फर्स्ट क्लॉक साइकिल पे ऐड इंस्ट्रक्शन कहां पर है, फेच स्टेज पर है। सेकेंड क्लॉक साइकिल पे जब ऐड वाली इंस्ट्रक्शन डिकोड पे चली गई तो एक नई इंस्ट्रक्शन ऐड होगी एसडब्ल्यू, वो कहां पर है, वो फेच स्टेज पर पहुंची। इसके बाद में जब ये ऐड जो है ये एक्सेस पे चलेगी, ऐड इंस्ट्रक्शन जो है कहां पर चलेगी, एक्सेस, थर्ड क्लॉक साइकिल पे। तो ये जो हमारी एसडब्ल्यू थी वो कहां पर चलेगी, डिकोड के ऊपर। जब ये एग्जीक्यूट के ऊपर पहुंची ऐड वाली तो ये एक्सेस के ऊपर पहुंची। फिफ्थ क्लॉक साइकिल पे ये ऐड वाली इंस्ट्रक्शन स्टोर पे पहुंची और जो एसडब्ल्यू इंस्ट्रक्शन थी वो एग्जीक्यूट पे पहुंची। तो फिफ्थ क्लॉक साइकिल पे पहली वाली ऐड जो इंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो गया इसका प्रोसेसिंग। और जबकि सिक्स्थ क्लॉक साइकिल पे जो सेकेंड इंस्ट्रक्शन एंटर हुई थी सेकेंड क्लॉक साइकिल पे वो क्लोज हो गई। तो अगर मैं ये पाइपलाइनिंग का कंसेप्ट बता रही हूँ तो इन केस ऑफ पाइपलाइन कंसेप्ट द 2 इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड कंप्लीटली इन 6 क्लॉक साइकिल्स। 2 इंस्ट्रक्शन 6 क्लॉक साइकिल में एग्जीक्यूट हो रही है। जबकि अगर मैं एक ही इंस्ट्रक्शन एंटर कर रही हूँ तो एक इंस्ट्रक्शन कितनी क्लॉक साइकिल ले रहा है, 5। और अगर ये सीक्वेंशियल मैनर होता तो एक इंस्ट्रक्शन 5 साइकिल ले रहा है, क्लॉक साइकिल ले रहा है। फिर सेकेंड इंस्ट्रक्शन एंटर होगी तो वो 5, उसके बाद में फिर से शुरू करेगा तो 10 क्लॉक साइकिल ले रही है, फिर उसके बाद में फिर से शुरू करेगा तो 15 क्लॉक साइकिल लग रही है। मतलब वो एक खत्म होने के बाद में दूसरी एंटर कर रही है, दैट इज सीक्वेंशियल वे। ये पाइपलाइनिंग में क्या हो गया, ये माइक्रो इंस्ट्रक्शन में डिवाइड होगी। जब एक इंस्ट्रक्शन जो है वो डिकोड स्टेज पे थी, डिकोड माइक्रो इंस्ट्रक्शन हो रहा था, तो दूसरी इंस्ट्रक्शन एंटर हो गई और वो कहां पर है, फेच स्टेज पर है। तो ये कैसा अपीयर हो रहा है, इट अपीयर्स एज इफ इट इज कॉन्करेंट हैपनिंग
साइमल्टेनियसली, पाइपलाइनिंग, पैरेललिज्म कंसेप्ट दिखा रहा है। बट यहाँ पर हो कैसे रहा है, ये माइक्रो इंस्ट्रक्शन के स्टेप में हो रहा है। और जब ये इंस्ट्रक्शन 5th क्लॉक साइकिल में पहुंची तो एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट भी होगी और 6th क्लॉक साइकिल में सेकंड इंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट होगी। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पाइपलाइनिंग। अब यहाँ पर हम देखेंगे एक हमारे पास में आर्किटेक्चर है, सुपर स्केलर आर्किटेक्चर। नाउ व्हाट इज सुपर स्केलर आर्किटेक्चर? एक पाइपलाइनिंग का कंसेप्ट पता है, एक सुपर स्केलर का। इट इंप्लीमेंट्स पैरेललिज्म कॉल्ड इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म विद इन अ सिंगल प्रोसेसर। सिंगल प्रोसेसर में इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म के लिए हमने सुपर स्केलर यूज किया। इट अलाउज faster CPU throughput and execute more than one instruction during a clock cycle by simultaneously dispatching multiple instruction to redundant functional units of the processor। मतलब अब ये प्रोसेसर कैसा है, ये प्रोसेसर हाई स्पीड प्रोसेसर है जहां पर मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस जो है वो एट अ टाइम एग्जीक्यूट हो सकती हैं। सो इट एग्जीक्यूट्स मोर देन वन इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग अ क्लॉक साइकिल simultaneously by dispatching multiple instructions. Okay, each functional unit is not a separate CPU core but an execution resource within a single CPU such as ALU, a bit shifter or a multiplier. So single जो functional unit है वो एक unit नहीं है, is not a separate CPU but is a core resource within which there is a single CPU having ALU। CPU के अंदर क्या क्या रहता है, arithmetical logical unit, then we have control unit also which controls bit shifters रहते हैं, multipliers रहते हैं। Okay, the two types of non-pipeline superscalar examples are being given. Instructions are issued from a sequential instruction stream and the CPU hardware dynamically checks for the data dependency between the instructions at runtime, accepts the multiple instruction per clock cycle। अब superscalar architecture में क्या होता है कि multiple instructions एक clock cycle में वो accept करता है। So multiple independent instructions are being pipelined। यहाँ पर multiple instructions are pipelined। Okay, each pipeline consists of multiple stages and each pipeline handles multiple instructions at a time। एक से ज्यादा, हर एक पाइपलाइन में मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहे हैं, एक पाइपलाइन में मल्टीपल इंस्ट्रक्शन। तो अगर हमारे पास में मल्टीपल पाइपलाइंस है तो मल्टीपल स्टेजेस एग्जीक्यूट हो रहा है। that is fetches multiple instructions at a time and then attempts to find the instructions that are independent of one another and can therefore be executed in parallel। मतलब फैच इंस्ट्रक्शन, जब हमारी एक इंस्ट्रक्शन फैच हो रही है तो एक नहीं, एट अ टाइम दो इंस्ट्रक्शन फैच स्टेज पे जाएंगी, दो इंस्ट्रक्शन जो है वो डिकोड स्टेज पे जाएंगी। Okay, CPU is responsible for determining when each instruction can be executed and for providing it with access to the resources it needs, such as memory operands, E-units, and CPU registers in a prompt and efficient manner. Now see sequential CPU, pipeline CPU, and superscalar CPU. This is very important diagram. You just take the screenshot of this also. See, in one clock cycle you have sequential stream। जो पहला वाला example है that is sequential example। मतलब हमारी first instruction है, ये instruction जो है वो कौन कौन सी stages से गई, fetch, decode, access operand, then execute and then store। एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद में सेकंड इंस्ट्रक्शन शुरू हुई 6th क्लॉक साइकिल पे, वो पांचों स्टेज से चलेगी, सेकंड इंस्ट्रक्शन कंप्लीट एग्जीक्यूट होगी। थर्ड इंस्ट्रक्शन जो है वो 11th क्लॉक साइकिल में एंटर हुई और ये इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई। ये सीक्वेंशियल मैनर हुआ। तो मेरे को 3 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, 15 क्लॉक साइकिल इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 3 इंस्ट्रक्शंस in sequential way। Now next is parallelism। Second is a CPU with a 5-stage instruction pipeline। ये parallelism का concept हुआ जहां पर pipeline यूज किया, 5-stage pipeline। तो जब पहली इंस्ट्रक्शन, ये I1 इंस्ट्रक्शन है, ये I1 इंस्ट्रक्शन फर्स्ट क्लॉक साइकिल में थी, सेकेंड क्लॉक साइकिल में नेक्स्ट स्टेज डिकोड पे गई, थर्ड क्लॉक साइकिल पे ये इंस्ट्रक्शन ऑपरेंड लोड पे चलेगी, फोर्थ क्लॉक साइकिल पे ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट पे चलेगी एंड फिफ्थ क्लॉक साइकिल पे ये इंस्ट्रक्शन कहाँ पे चलेगी, स्टोर पे जाएगी। जब ये इंस्ट्रक्शन डिकोड पे गई थी, तो उस समय जो पहली इंस्ट्रक्शन थी
जब ये इंस्ट्रक्शन फर्स्ट वाली इंस्ट्रक्शन डिकोड स्टेज पे गई तो सेकेंड इंस्ट्रक्शन एंटर हो गई। जब फर्स्ट वाली स्टेज ऑपरेंड लोड पे गई तो सेकेंड इंस्ट्रक्शन कहाँ पर चलेगी, डिकोड में, और थर्ड इंस्ट्रक्शन ऐड हो गई। जब फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन स्टेज पे चलेगी तो सेकेंड स्टेज ऑपरेंड लोड पे चलेगी, थर्ड इंस्ट्रक्शन जो है इंस्ट्रक्शन डिकोड पे चलेगी, और फोर्थ इंस्ट्रक्शन एंटर हो गई फेच स्टेज पे। जब फिफ्थ क्लॉक साइकिल हुई, ये देखो फिफ्थ क्लॉक साइकिल में फर्स्ट इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई, ओके, और सेकेंड इंस्ट्रक्शन कहाँ पहुंच गई, एग्जीक्यूट पे। थर्ड इंस्ट्रक्शन कहाँ पहुंच गई, ऑपरेंड लोड पे। फोर्थ इंस्ट्रक्शन कहाँ पे पहुंची, इंस्ट्रक्शन डिकोड पे, एंड फिफ्थ इंस्ट्रक्शन जो है वो एंटर कर ली। सो इफ इन दिस वे सपोज इफ इट मूव्स, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या हो गया, यहाँ 6 इंस्ट्रक्शन एंटर होगी, 7 8 9 10 टोटल 15 इंस्ट्रक्शंस एंटर होगी। तो आफ्टर 15 क्लॉक साइकिल यू विल फाइंड दैट टोटल I11 11 instructions will be executed in case of pipeline। इस तरह से अगर कंसेप्ट चल रहा है पाइपलाइन का, तो कितनी इंस्ट्रक्शन एंटर हो गई पाइपलाइनिंग में, पाइपलाइन स्टेज पे ये 5 स्टेजेस होकर, तो ये 15 जो है इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग में है, जिसमें से 11 इंस्ट्रक्शन जो है 15 क्लॉक साइकिल पे कंप्लीट हो चुकी है। ओनली 4 इंस्ट्रक्शन 12 13 14 और 15 ये प्रोसेसिंग में है। मतलब अंडर प्रोसेसिंग 4 इंस्ट्रक्शन एंड 11 इंस्ट्रक्शंस आर ऑलरेडी कंप्लीटेड इन 15 क्लॉक साइकिल। Which concept is being used? It is pipeline concept. Now this is third diagram is the superscalar diagram. इस superscalar diagram में 2 instructions, देखो ये instruction 1 and instruction 2 enters into the fetch stage। मतलब एक मल्टीपल पाइपलाइन है यहाँ पे, यहाँ पर आपके पास में एक से ज्यादा पाइपलाइन है, एक ये पाइपलाइन है, एक ये पाइपलाइन है, दैट मीन्स 2 इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली। मतलब 2 इंस्ट्रक्शन जो है वो फेच स्टेज पे चलेगी, आगे गया 2 इंस्ट्रक्शन जो है वो फिर से फेच स्टेज पे आ गई और ये डिकोड स्टेज पे पहुंच गई। फिर उसके बाद में इंस्ट्रक्शन 1 और इंस्ट्रक्शन 2 ऑपरेंड स्टेज पे पहुंच गई, और फिर उसके बाद में इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूशन स्टेज पे चलेगी, एंड लास्ट में इंस्ट्रक्शन कहाँ चलेगी, ऑपरेंड स्टेज पे। तो ये जो एग्जांपल है, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द सुपरस्केलर। तो यहाँ पर 2 इंस्ट्रक्शंस पैरेलली चल रही है, तो पैरेलल पाइपलाइनिंग चल रहा है यहाँ पर, पैरेलल पाइपलाइनिंग। दिस टाइप ऑफ आर्किटेक्चर इज कॉल्ड एज सुपरस्केलर आर्किटेक्चर। तो ये जो सुपरस्केलर आर्किटेक्चर है, यहाँ पर एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शन जो है पाइपलाइन में चल रही है। अब देखो आफ्टर 15 क्लॉक साइकिल 3 इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट हुई, हमारे पास में 3 इंस्ट्रक्शंस कहाँ पर कंप्लीट हो गई, यहाँ पर ये ऑपरेंड स्टोर पे पहुंच गया। मतलब इस 6 क्लॉक साइकिल पे हमारे पास में टोटल 4 इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट हो गई, I3 I4 टोटल 4 इंस्ट्रक्शंस जो है वो कंप्लीट हो गई ओनली इन 6 क्लॉक साइकिल। अब देखो 15 क्लॉक साइकिल में हमारी कितनी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो गई, 22, और कितनी प्रोसेस में है, 8। मतलब टोटल I29 30 मतलब टोटल इंस्ट्रक्शन 15 क्लॉक साइकिल में 30 प्रोसेसिंग में है, जिसमें से 22 इंस्ट्रक्शंस जो है वो कंप्लीट हो चुकी है प्रोसेसिंग पार्ट, और ओनली सिर्फ 8 इंस्ट्रक्शंस जो है वो क्लॉक साइकिल में प्रोसेसिंग पार्ट में है। So this is my sequential, this is my second one is my pipeline mode, and third is multiple pipeline, that is called as the superscalar architecture. Okay, now this closes today's session. Yes ma'am. Okay, now let's see the example of two-way superscalar execution of instruction. See here, load instruction, two-way instructions are being executed in this case. 2 इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम सुपरस्केलर आर्किटेक्चर में एग्जीक्यूट हो रही है, लोड ये ऐड देन स्टोर। ओके, सो ये देखो यहाँ पर ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, दैट इज द एग्जांपल्स ऑफ द टू वे सुपरस्केलर एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। 3 डिफरेंट कोड फ्रेगमेंट्स फॉर एडिंग अ लिस्ट ऑफ 4 नंबर्स। 4 नंबर को ऐड करने के लिए ये 3 डिफरेंट fragments, code fragments हुए हैं। Look at the second diagram, execution schedule for code fragment of first one। ये पहली वाली का देखो, fetch decode fetch। so हमारी जो इंस्ट्रक्शन है load R1 comma @1000, दिस इज एड्रेस लोकेशन। इस एड्रेस लोकेशन पे जो वैल्यू दी हुई है वो R1 के अंदर लोड करनी है।
Okay, so this is at clock cycle. Instruction cycles दी हुई है, 0 clock cycle, 2 3 4 5 8 0, ये 1 पे कंप्लीट हो गया, ये 2 पे कंप्लीट हो गया, ये 3 पे कंप्लीट हो गया, ये 4 पे एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, ये 5 पे वाला, 6 पे, ये वाला 7 पे। तो इंस्ट्रक्शन क्या है हमारी, लोड R1 विद द एड्रेस वैल्यू 1000 एड्रेस लोकेशन में जो वैल्यू वो R1 में लोड किया। तो ये हमारी इंस्ट्रक्शन इस तरह से एग्जीक्यूट हो रही है। सेकंड इज 1008 पे जो है वो R2 पे लोड किया, फिर 1004 पे जो R1 पे लोड किया, 100C पे जो है वो R2 पे लोड किया और R2 की वैल्यू RE1 में लोड की। और ये जो ये हमारे पास में 2000 एड्रेस लोकेशन है, इसकी वैल्यू को हमने कहाँ लोड किया, R1 में। ओके, सो दीज आर द instructions which are being executed, that is code fragment 1 is being executed in a superscalar architecture format। दो एक साथ चल रही है, देखो दो ये दो एक साथ चल रही है, दो। तो जरूरी नहीं है कि हर इंस्ट्रक्शन जो है वो 5 जो स्टेप्स दिए हुए हैं उसके थ्रू जाएगी। IF means instruction fetch, ID means instruction decode, OF means operand fetch, E means instruction execution, W means write back, and NA is no action. So these are the different micro instructions. So it is not necessary that every instruction goes through all these माइक्रो इंस्ट्रक्शंस। तो जैसे हमने पहले वाले में बताया था कि 5 माइक्रो इंस्ट्रक्शंस है, इसी टाइप से इस तरह से भी डिवीजन हो सकता है। दिस इज हाउ सुपरस्केलर वर्क्स। नाउ सी हियर हार्डवेयर यूटिलाइजेशन ट्रेस फॉर द schedule in B. So this is the clock cycle. You have 4 5 6 7 clock cycle, and this is horizontal waste and this is vertical waste. This is full issue slots and empty slot. So this ends today's session. Do you have any question to ask?